Hello friends, in work and energy chapter, today we will see transformation of energy and law of conservation of energy. So transformation of energy means what? So here means when one form of energy is transformed into another form of energy, that is called as the transformation of energy. Students, मीन्स लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे यार. फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी. देयर आर सो मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज. So here one form of energy is transformed into another form, and that is nothing but transformation of energy. Now here we will see some examples. तो ये जो सब एग्जाम्पल्स है ये सब हमारे जो हम डेली देखते हैं वही एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए हैं. So here first example, the whistling of a cooker due to steam. So look here, means when we are giving heat to the cooker or the water which is inside the cooker, then what happens? There is a formation of steam, and because of steam there is a whistling. So here in this case what happens? Here means the heat energy is converted into sound energy. Now second example, the crackers exploded in Diwali. तो ये तो आपको अच्छी तरह से पता है, जब आप क्रैकर्स जलाते हो तो क्या होता है, तो जोर से आवाज होता है, लाइट दिखाई देता है. मीन्स व्हाट हैपेंस हियर? मीन्स व्हेन वी आर बर्निंग दिस क्रैकर्स, देन केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी. यहाँ पे साउंड एनर्जी भी करेक्ट रहेगा. ओके, सो हियर मीन्स द but in this case here there is a light, and that's why here I have written light energy, but sound energy that is also correct. So look here, means the जो क्रैकर्स रहते हैं उसके अंदर क्या रहता है, केमिकल्स रहते हैं. जब आप बर्न करते हो तो क्या होता है, वो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी. ओके, now students look here, means there are some, here we will see now more examples, but before that listen here. Means in your exam there may be questions like this, means the which is the instrument which converts heat energy into sound energy, or give example of conversion of chemical energy into the light energy, or fill in the blank, मतलब crackers में this which energy is converted into light energy. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं. तो इसके लिए आप लोग ये अच्छी तरह से पढ़ लो, और बहुत ही सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है. डेली लाइफ में आप ये सब देखते ही हो, वही आपको यहाँ पे ठीक तरह से लिखना है. ओके, तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. सो थर्ड एग्जांपल इज इलेक्ट्रिक लैम्प. तो ये भी आप लोग देखते हो, मीन्स व्हेन वी आर गिविंग इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब जब आप स्विच ऑन करते हो तो क्या होता है, मीन्स दैट लैम्प जनरेट्स लाइट. means electrical energy is converted into light energy. Next example है microphone. वो भी आपको पता है, means the microphone, here microphone converts sound energy into electrical energy. Okay, microphone में क्या होता है, sound energy electrical energy में convert होता है. Next example है heater. तो ये भी आपको पता है, heater means when we are giving electrical energy or when we do switch on, at that time what happens, means the heat electrical energy is converted into heat energy. अभी ये हीटर की तरह और बहुत सारे एग्जांपल्स है. फॉर एग्जांपल इंडक्शन रहता है, इंडक्शन कुकर रहता है. आफ्टर दिस आप माइक्रोवेव भी देखते हो, आयरन है. सो ऐसे टाइप के सिमिलर एग्जांपल है. तो ये सब एक मैंने और बुक में थोड़े ही एग्जांपल दिए, बट आप लोग बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स ढूंढ सकते हो जहाँ पे एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं. तो आप लोग ये देखो. तो अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, प्राइमरी सेल. तो लास्ट ईयर में आपने पढ़ा रहेगा, यहाँ पे जो सेल रहता है, सेल के अंदर क्या रहते हैं, केमिकल्स रहते हैं. एंड दिस केमिकल्स यूज होते हैं कब, जब हम बैटरी में या रिमोट में या कहाँ पे भी जहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो एट दैट टाइम व्हाट हैपेंस, मींस केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जनरेटर.
तो जनरेटर के बारे में भी पता है. इन जनरेटर what happens means there is a storing of some energy, mechanical energy कुछ store रहता है, and when there is a power cut at that time that mechanical energy is converted into electrical energy. जब लाइट जाते हैं या पावर कट होती है तब हम क्या करते हैं, वही एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. नेक्स्ट है थर्मोकपल. सो थर्मोकपल ये आप लोग हायर एजुकेशन में पढ़ने ही वाले हो, बट यहाँ पे सिर्फ आप लोग यही ध्यान में रखो, यहाँ पे दो मेटल्स रहते हैं, दो टाइप के मेटल्स रहते हैं, और ये टाइप का इंस्ट्रूमेंट हम हीट यूज मेजर करने के लिए यूज करते हैं, मतलब टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोकपल यूज होते हैं. तो आप लोग अभी यहाँ पे सिर्फ ध्यान में रखो, यार हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फैन. ये भी आप लोगों को पता है. फैन में क्या होता है, देयर इज आल्सो कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. फैन जोर जोर से रोटेट होता है, मतलब क्या होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी रहती है. Means when we are giving electrical energy to that fan, then it is converted into mechanical energy. Drawing out pieces of iron from garbage. तो आपने ये भी देखा रहेगा, जब गार्बेज में से कुछ लोग जब आयरन के पीसेस ढूंढते हैं, मतलब वो देन आयरन पीसेस को अलग करते हैं, देन एट द टाइम हियर मैग्नेटिक एनर्जी यूज होता है, एंड दैट मैग्नेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी. नेक्स्ट सोलर सेल. सोलर सेल में क्या होता है, मींस द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नेक्स्ट एग्जांपल लाउड स्पीकर का. ये भी आपको पता है, लाउड स्पीकर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी. मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके जो साउंड रहता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसका इंटेंसिटी बढ़ता है. Okay, so these are the examples which we have seen for the transformation of energy. तो आपको ये सब examples और इसके अलावा भी और examples आपको घर में या इधर, मतलब जहाँ पे भी आप जाएंगे वहाँ पे आपको observe करने हैं, and you think about it which energy is converted into this another energy, वो भी आप सोचकर रख सकते हैं. Okay. नाउ नेक्स्ट जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अभी हमने जो देखा है अभी, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बेस पर ही ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. तो उसका मतलब क्या है, एनर्जी कोई क्रिएट भी नहीं करता है या एनर्जी को कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता है, बट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू from one form into another form. तो अभी हमने देखा है एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म, मतलब साउंड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी. अभी जो बहुत सारे एग्जांपल हमने देखे ना, तो यहाँ पे वही उसके ऊपर ही ये सेंटेंस है, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म. Thus, total amount of energy in the universe remains constant. मतलब जो भी टोटल एनर्जी है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट ही रहती है, उसमें कम या ज्यादा कुछ भी नहीं होता है. सो हियर सो रिमेम्बर दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये हमेशा के लिए ध्यान में रखना है. एनर्जी कैन, यहाँ पे तीन पार्ट आप ध्यान में रख सकते हो, तीन सेंटेंसेस है. फर्स्ट है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. Second sentence है it can be converted from one form into another form, and the last sentence है the total amount of energy in the universe remains constant. Okay, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है, बहुत ही सिंपल है. मतलब स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसे 2 मार्क का क्वेश्चन आपको हो सकता है. then you just write these 3 sentences and you remember in this way only. Okay, अभी आपके बुक में एक एक्टिविटी दिया है, वो एक्टिविटी हम देख लेते हैं. सो इन दिस एक्टिविटी यार मेक 2 पेंडुलम्स, मतलब आपको 2 पेंडुलम करने के लिए कहा है. सो हाउ टू मेक दिस 2 पेंडुलम्स, लुक हियर.
मीन्स देर आर 2 स्ट्रिंग्स, ये जो 2 है ये 2 थ्रेड है या स्ट्रिंग आपके घर में जो भी है उसका यूज करके आपको ये पेंडुलम बनाने हैं। और 2 नट लेने, आपके घर में जो नट्स रहते हैं वही यूज करके आप कर सकते हो। ऐसे हेक्सागोनल शेप के जो नट्स या स्क्वायर शेप के भी नट हो सकते हैं। सो टेक 2 सिमिलर नट्स, मतलब एक बड़ा एक छोटा ऐसा मत लो, दोनों नट कैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। एंड टाई 2 थ्रेड्स, मतलब एक नट को एक थ्रेड और दूसरे नट को दूसरा थ्रेड, ऐसे थ्रेड्स आप टाई करो। एंड लेंथ ऑफ दिस 2 थ्रेड्स मस्ट बी सेम। So here means the make 2 pendulums of same length with the help of thread and 2 nuts. After this, these 2 pendulums to the horizontal thread in such a way that they will not hit to each other while swinging. तो उसके बाद ये 2 थ्रेड्स को दो जो पेंडुलम आप बनाएंगे उन 2 पेंडुलम को एक हॉरिजॉन्टल थ्रेड को आपको टाई करना है। ओके, एंड टाई इन सच अ वे दैट means while swinging this nut should not touch to this another nut, मतलब आपको इस तरह से ये टाई करना है कि इस डिस्टेंस पे, कुछ डिस्टेंस पे आपको टाई करना है कि इन सच अ वे दैट ये जब स्विंग होगा तो इसको वो टच नहीं होना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट इज द प्रोसीजर क्या है इसके बाद, मतलब आफ्टर मेकिंग दिस कंस्ट्रक्शन आपको क्या करना है, सिंपल प्रोसीजर है, सिर्फ एक ही पेंडुलम को आपको स्विंग करना है। So here means the swing only one pendulum and observe the experiment. So here इस experiment में क्या observation है वो आपको देखना है। तो here means observation क्या रहेगा, मैं आप लोग खुद करो, बट यहाँ पे अभी मैं आपको बता देती हूँ और आप ये घर पे आपको ये ट्राई करना है। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रहेगा मीन्स द स्पीड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द फर्स्ट पेंडुलम, मतलब जिसको आप स्विंग कर रहे हैं उसका स्पीड आपको धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई देगा। मीन्स आफ्टरवर्ड इट कंप्लीटली स्टॉप्स, बट एट द सेम टाइम it is observed that the second pendulum start to swing. So here means the speed of oscillation of first pendulum slowly decreases and the second pendulum which was initially stationary begins to swing. मतलब पहले मतलब एट द बिगिनिंग जब आपने यहाँ पे जिसको स्विंग किया है तो वो स्विंग होता है, लेकिन ये कैसा था, ये पेंडुलम स्टेशनरी था, मतलब वो रेस्ट पोजीशन पे था। बट आफ्टरवर्ड मीन्स द स्पीड ऑफ दिस पेंडुलम डिक्रीजेस and here speed of this pendulum increases or it begins to swing. So this is the experiment. So here what will be the conclusion from this experiment means the one pendulum transfer its energy to the other pendulum, मतलब एक पेंडुलम दूसरे पेंडुलम को एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो ये था उसका कंक्लूजन। सो हियर मीन्स इस टाइप का एक्सपेरिमेंट आप घर पे जरूर करके देखो, देन यू विल बी हैप्पी। तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, अरे हाँ हमने ये करके देखा है, इससे बहुत खुशी होती है ना। ओके, सो दिस इज आवर लेक्चर, ये था आज का हमारा लेक्चर। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम पावर के बारे में देखने वाले हैं। ओके, थैंक यू।